Hello students. So in this series of video, I will be helping you to solve the sample question papers as well as the previous year's questions. Okay. So this is the question paper of previous year and this is biology question paper. Now in this biology question paper today in this video I am going to discuss about the MCQs. Okay. So that you guys have little bit so that you can understand what kind of MCQs come in the board exam. Okay, so without wasting our time, let's start. So the first question here you can see in section A, it is given how many questions are there. Question 1 to 16 are MCQs, multiple choice type questions carrying 1 mark each. Okay, so the first question is given here. देखो, refer to the Venn diagram given below. Select the option with correct examples, that is PQR. Clear? So see the Venn diagram. So first it is given dicotyledonous. Okay, P. That means that P, it is dicotyledonous. Okay, but this P, it is out of this endospermic seed. Clear? That means it is non-endospermic. Clear? Now see the Q. Q, it is also dicotyledonous and it is endospermic seed. Clear? So जो Q सीड है ना वो क्या है, वो डाइकोट भी है, वो एंडोस्पर्म भी है इसमें. And the R is monocot but it is endospermic seed. Clear? It is monocot but it is endospermic seed. So what will be the correct answer? Okay, try to understand. So first dicot, which is non-endospermic. Now generally the plants belonging to the Leguminosae family. Which family? Leguminosae. Okay, Leguminosae family. Now the term Leguminosae, it has been changed to Fabaceae. Okay, Fabaceae. Clear? Now in this Fabaceae family, you will find the plants which are non-endospermic. Clear? Now here you can see bean. Bean, here you can see it is dicot but it is not having any endosperm. Clear? Castor, it is also dicot but it is having endosperm. Clear? Q. So Q, it is castor, it is also having endosperm. And here you can see maize. Maize is monocot but it is having endosperm. Maize is monocot but it is having endosperm. Clear? So what will be the correct answer? The correct answer will be B. Okay, B is the correct answer. Now move to the question number 2. Okay, question number 2 in English we will see the type of bond represented by the dotted line. Okay, in a schematic polynucleotide chain is. So ये वाला जो बॉन्ड दिया हुआ है ना एस और बी के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है ये पूछा है. ठीक है, अब बोला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना उससे क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं डीएनए आरएनए. क्लियर? ठीक है, डीएनए आरएनए, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है ये डीएनए आरएनए. सो इन डीएनए और आरएनए यू विल फाइंड दिस things, that is sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. Clear? Now this bond ये किसके साथ है, शुगर के साथ. क्लियर? नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, इट इज लाइक दिस. देखो कैसा होता है ये. ओके, सो हेयर यू कैन सी this is the first carbon, this is the second carbon, third carbon, fourth carbon and this is the fifth carbon. CH2O इसके साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट. क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन. ओके, तो शुगर, तो ये शुगर के साथ क्या अटैच है, देखो बी. ये जो बी होता है ना ये एक्चुअली क्या है, दिस इज आइदर प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस. ठीक है, प्यूरिन बेस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड इसके बारे में बोला ये कौन सा बॉन्ड है. ठीक है, ये शुगर के साथ जो अटैच है ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्या है ये, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक
ग्लाइकोसाइडिक, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है ये? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द ऑप्शन गिवन? सी, ऑप्शन सी, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्या बोला है. लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या है भाई? ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड. ओके, that sets milk into curd is categorized as lactobacillus that sets milk into curd is categorized as. तो लैक्टोबैसिलस हमको पता है कि वो क्या करता है, लैक्टोज शुगर जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड बनाता है. ठीक है, कार्ड बनता है. अब देखो ये कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है. पहले बोला है साइनोबैक्टीरिया है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं उसको, ये नहीं है. नेक्स्ट बोला है आर्कीबैक्टीरिया. नो, it is also not the archaebacteria, it is also not the cyanobacteria. नेक्स्ट बोला है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो नॉट द केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये केमोसिंथेटिक नहीं होता है. नेक्स्ट बोला है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स is being used to test the safety of the polio vaccine. ये माइस है. ठीक है, क्लियर, कौन सा आंसर होगा? ये माइस. ठीक है, इट इज नॉट शीप, गोट, पिग, इट विल बी माइस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, देखो क्या बोला है. द साइंटिस्ट हु प्रपोज द एम्ब्रायोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग humans develop a row of vestigial gill slits behind the head, but it is a functional organ only in fish and replaced by lungs in all other vertebrates. देखो ये एम्ब्रायनिक एविडेंस होता है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, जो इवोल्यूशन का एविडेंसेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीज. पैलियोंटोलॉजिकल मतलब फॉसिल एविडेंस है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है, एनाटॉमिकल है. तो ये एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है. और किसने बोला है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ये. दिस इज सेड बाय अर्नस्ट हैकेल. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लासेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लासेंटा से सीक्रेट होता है एंड इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने वाला ये तो रिलैक्सिन तो नहीं होता है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन ये तो मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है. सो क्या है आंसर? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको HCG भी बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो व्हाट इज टोल्ड हियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू IgE. ओके, द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन जो एलर्जन होता है टू IgE एंटीबॉडीज इनिशिएट्स द रिलीज ऑफ. तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिलीज होता है? तो ये तो एकदम इजी है, इसको हिस्टामाइन बोल दो. ठीक है, व्हाट इज द आंसर? दैट विल बी हिस्टामाइन. इंटरफेरोन नहीं है, हेपारिन नहीं है, ऐसी टाइलामिन भी नहीं है. सो इट इज हिस्टामाइन. क्लियर. नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो इसमें से 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट देखो बोला है 45 + XX. उसका कैरेक्टर क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर इज गिवन ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज. ओके, अब 45 देखो ऑटोजोम जो है ना, नॉर्मली क्या होता है देखो ह्यूमन में 44 + XX इसको हम बोलते हैं फीमेल, 44 + XY इसको हम बोलते हैं मेल. सो ये जो 44 दैट मीन्स 22 पेयर जो होता है इसको ऑटोजोम बोलते हैं, ऑटोजोम. ठीक है, और बाकी जो 2 है ना इसको बोलते हैं एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें देखो 45 + XX. सो व्हाट डज इट मीन? 45 + XX मीन्स दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑटोजोम है. सो अगर हम ट्राइजोमी की बात करें 2n + 1 कंडीशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 44 + 1 45.
ठीक है, ट्राइजोमी ऑफ कोई भी 21st क्रोमोसोम का अगर ट्राइजोमी होता है उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में ये कैरेक्टर्स मिलता है, सो ये करेक्ट है। ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। अब देखो अगर हम इसको देखें 44 प्लस XXY, सो नॉर्मली देखो क्या होता है, 44 प्लस XY जो होता है वो होता है नॉर्मल मेल, लेकिन इसमें बोला है XXY मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ना वो मेल में होता है, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो मस्क्यूलिन होता है, तो इसमें क्या बोला है ओवरऑल फेमिनिन डेवलपमेंट, तो ये तो रॉन्ग है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, अंडरस्टूड, सो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन ठीक ही लग रहा है मेरे को, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर, सो ये बी वाला ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट अगर हम इसको हम देखें 44 प्लस X0, ये तो टर्नर सिंड्रोम है, तो स्टेराइल फीमेल्स एज ओवरीज आर रूडिमेंटर है, ये भी सही है, दिस करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला है 44 प्लस XY, ये तो नॉर्मल मेल ही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये बी, 8 का जो बी है। नेक्स्ट बोला है देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बोला है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वी नो दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे कट द DNA एट द स्पेसिफिक साइट, जिसको पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जहाँ पर कट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है हिंट टू ऑलवेज कट्स DNA मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर। तो ये 6 बेस पेयर्स, हाउ मेनी 6 बेस पेयर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इधर। नेक्स्ट क्या बोला है देखो द पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, सो पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक है, बाय ए कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म। देखो पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है दैट मीन्स आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको पता है कि अगर हम 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 17th डे, ओके 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इन एनी डे फ्रॉम द ओवरी द सेकेंडरी ओसाइड और द एग जिसको बोलते हैं दैट कैन बी रिलीज, मतलब ओव्यूलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है ये इस टाइम पीरियड में। तो ये जो टाइम पीरियड है वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस। क्लियर, सो ये आंसर होगा डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो दैट इज द पीरियोडिक एब्सटेनेंस। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, which of the following bacteria were used by Stanley Cohen and Herbert Boyer to accomplish the construction of the first rDNA। rDNA मतलब recombinant DNA। तो ये जो बैक्टीरिया है which of the following bacteria are used by Stanley Cohen and Herbert Boyer, तो उन लोगों ने क्या किया है, वो साल्मोनेला टाइफीमोडियम जो होता है ना, इस बैक्टीरिया से ये प्लाज्मिड कलेक्ट किया है। ठीक है, सो हार्वर्ड बॉयर्ड अकम्प्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ये साल्मोनेला टाइफीमोडियम है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है इधर। नेक्स्ट बोला है द ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है आपको पता है, जो फूड चेन जो होता है ना, उस फूड चेन में सपोज मैंने अगर एक फूड चेन बोला ग्रास हॉपर, देन उसको कौन खाता है, फ्रॉग, उसको कौन खाता है सपोज स्नेक। क्लियर, सो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है, ग्रास ओवर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में है, तो इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। देखो अब बोला है द ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, मतलब एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हार्बीवोर भी है, मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, तो वो होता है फिश। क्या होता है ये, फिश। क्लियर, सो फिश इज द ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। क्लियर, सो दीज आर सम MCQs today we have solved. So this is how you have to read the questions properly and you have to, according to that you have to give answer. ठीक है, so in next video we'll be discussing the questions of the 2 marks, okay, 3 marks, 4 marks like this. Okay,
So take preparations, read NCERT properly, and solve sample question paper, previous year question as much as you can. Okay, thank you.